भारत के 28-30 करोड़ व्यक्ति जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, उन सभी का द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में स्वागत है। हम में से जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, उनको हिंदी के बहुत से कम से कम गिनतियाँ तो नहीं आती हैं। 89 कहा जाए तो दे डोंट अंडरस्टैंड इमीडिएटली कि 89 है कि 79 है। तो एक छोटी सी एक ह्यूमर की एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। तो वो लड़की बोलती है पहले हिंदी सीख लो फिर ये बातें करो। लेट्स हैव ए लुक। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? या श्योर, लिखो 89 69 49 49। बेटा पहले हिंदी सीख के आओ तब नंबर लेना। अब जब 50 लोग क्रॉस कर चुके हैं, उन्हीं का ये ग्रुप है, तो कुछ तो 90 भी क्रॉस कर चुके हैं। तो सम आर बोर्न इन 40s, सम इन 50s, सम इन 60s एंड इवन सम इन बिफोर मिड 75, लेट अस से। तो ये एक अलग टाइप की जनरेशन रही है जिसने बहुत चेंजेस देखे हैं। इससे पहले जो लोग कि आज हमसे 100 साल पहले पैदा हो गए, उतने उन लोगों ने इतने चेंजेस नहीं देखे जितने हम लोगों ने देखे हैं। कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, तो इसी की एक चर्चा हो रही है इस छोटे से वीडियो में। आपको अच्छा लगेगा। दोज हू आर बोर्न, मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हमने ज़माना देखा है, दो ज़माने देखे हैं। देखते हैं।
दुनिया भर में लोगों की उम्र जो है वो जीने की उम्र बढ़ती जा रही है और एवरेज एज जो है बढ़ रही है, उसका बर्डन जो आता है वो यंग लोगों पे आता है। एट द सेम टाइम अगर अच्छी पेंशन न मिले तो बुढ़ापा ख़राब हो जाता है। तो इस सब को बैलेंस करने में बहुत मुश्किलें गवर्नमेंट को आ रही हैं। फ्रांस ने अभी अनाउंस किया कि 62 की जगह वो 64 में रिटायर करेंगे लोगों को, तो उसका काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। तो एक छोटा सा वीडियो उस पर भी देखते हैं एंड बी रेडी फॉर दैट कि आगे के जो साल हैं वो चिंता वाले हैं। French riot police charge at a pension reform protest in Paris and knock a man to the ground. Elsewhere, some officers beat people with batons and fire tear gas. Rights groups in France say the police are increasingly using excessive force against demonstrators and intimidatory tactics, including arbitrary arrests. We did nothing illegal. We were carrying nothing illegal. The arrest and detention was really aggressive and totally unjustified. I was arrested and I wasn't even taking part in the protest. I was just in a street nearby. Last week, thousands of people gathered in the city to demand change. These people have come here to demonstrate against what they say is growing police violence in the demonstrations. There was so much police violence during the Yellow Vest movement, and then things seemed to get better. But now it's really bad again. They just want to stop us protesting. But this is the sort of violence that the police say they face. A minority of troublemakers who infiltrate some protests and often target officers like this one. Carried away unconscious by a colleague after being hit in the head by a paving stone. These radicalised elements from the ultra-left are trying to hold trade union demonstrations hostage. They come to break, hurt and kill police officers and gendarmes. Their goals have nothing to do with the pension reform. But some say it's the government's approach to policing that's part of the problem. It's as if the French state doesn't know what to do other than to respond to violence with more violence. This police union spokesman says there's also a lack of training in parts of the force. The problem is with training, both at the start in school and then during a career. Unfortunately, it's not very good in France. Trade unions say that people should be able to protest without fear of violence and that police should focus on the troublemakers, not peaceful demonstrators. So far, though, there's no sign that police methods will change or that the pension reform protests will end. A volatile situation that could get worse. Natasha Butler, Al Jazeera, Paris. अब देखते हैं एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म। घर का जो नौकर या घरगाटी जो भी आप कहें, रामा कहें, वो भी इस बारे में कितनी चिंता रखता है, ही इज़ कंसर्न, और वो एक रिकॉर्डिंग कर डालता है, वो भेज देता है पोते को। तो आप देखिए, इट्स टची। लेट अस सी दिस वेरी शॉर्ट फिल्म। क्या हो गया? हर समय क्रॉसवर्ड। फोटो देखो, बीफू की फोटो देखोगे। हाँ, बीफू की फोटो। रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी को कैसे भूल सकता हूँ मैं? रानी मुखर्जी। और याद है आपको जब अपने बीफू ने नई नई स्केटिंग शुरू की थी, कैसे मोहल्ले वाले उसको घूर घूर के देखते थे? देखेंगे ही, हीरो है हमारा बीफू। और शैतानी का याद है उसका? पटाखे दिवाली के तुमने लाके दिए थे? हाँ, मैंने लाके दिए थे, गलती से उसने अपने जेब में डाल दिए। ये तो मैंने बचा लिया, नहीं तो जल जाता था। ये देखो, इसकी ये टी-शर्ट है। हाँ, उसकी बुआ ने लेके दी थी, मैं साथ में गया था ना। अच्छा, मतलब क्योंकि बुआ ने दी थी इसलिए याद है। हाँ, बिफू का ये बात करो। दो। हाँ बेटा। हाँ दादी, सॉरी, मैं आज पैसे ट्रांसफर करने में थोड़ा देर हो गया। अच्छा, वो कोई बात नहीं बेटा। दिवाली पर आ रहे हो ना? दादी, आपको बताया तो बहुत काम है यहाँ पे, अब बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही है। दादी, क्लाइंट का फोन आ रहा है, मैं आपको करता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, जीते रहो।
अरे जाने दो ना छोटू, आज रात को खीर बनेगी, बादाम ज़्यादा डालना, मीठा भी ज़्यादा डालना। हाँ समझ गए? Sir, I'll just send it to you in 5 minutes. Sir, I'll just send it to you in 5 minutes. I've just reached home. दादी का याद है उसका? बताइए, दिवाली के तुमने लाके दिए थे? हाँ मैंने लाके दिए थे, गलती से उसने अपने जेब में डाल दिए। ये तो मैंने बचा लिया, नहीं तो जल जाता था। वो बात जब अपना बीजू नया नया स्केटिंग सीखा था, कॉलेज वाले कैसे घूर घूर के देखते थे उसको। तो हीरो है हीरो, सब देखेंगे क्यों नहीं? अरे हाँ, अभी उसकी बेल खराब होती है ना, तो बीफू वो याद करता है। क्या बात? अभी तो कितना था ना, रोज रोज उनकी बेल तोड़ेगा तो क्या करेंगे? छोटू, देखो कौन है? जी। दिवाली के तुमने लाके दिए थे? हाँ मैंने लाके दिए थे, गलती से उसने अपने जेब में डाल दिए। हाँ दादू, याद है मुझे भी। अगर आप उस टाइम नहीं होते ना, मैं सही में अपनी पैंट जला लेता। कैसे दादू? ये कैसा है? एकदम अच्छा। हाय दादू। वक्त की डोर थामे रहना जरूरी है, लेकिन रिश्तों की डोर को भी आपके वक्त की जरूरत है। इस दिवाली अपनों के साथ वक्त बिताइए। अच्छा लगेगा। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना होगा। तो अहमदाबाद में किसी एनजीओ ने इस तरह का एक गैदरिंग किया था कि दोज आर सीनियर सिटीजन्स दे कैन चूज़। और ये देखा गया कि दे वर मोर हैप्पी विथ लिव इन रिलेशनशिप रादर मैरिंग ए पार्टनर। तो एक नया ट्रेंड है जो कि मेरे हिसाब से तो अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि जब आप मैरिज करते हैं तो आपकी बहुत सी लाइबिलिटीज़ और खड़ी हो जाती हैं। और लिव इन रिलेशनशिप जो है इट्स अ डिफरेंट थिंग। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि भाई कुछ मामला बिगड़ता है तो कुछ खून खराबा हो जाता है, लेकिन बड़ी उम्र के लोग क्या खून खराबा करेंगे, तो दे आर मोर सेफ। तो लेट्स सी, आप भी सोचिए कि इन चीज़ों का सोसाइटी पे क्या असर होगा। सो लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो रिगार्डिंग लिव इन रिलेशनशिप ऑफ सीनियर सिटीजन्स। आंखें खोलो इंडिया आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। अहमदाबाद में एक एनजीओ ने सीनियर सिटीजन का एक अनोखा स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर की खास बात यह है कि अगर रजामंदी हो तो अपने चुने हुए साथी के साथ लिव इन रिलेशन में भी रहा जा सकता है। अहमदाबाद के मेहंदी नवाबगंज हॉल में बुजुर्गों का जमावड़ा लगा है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन किसी समारोह में नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग आए हैं एक अनोखे स्वयंवर में। जी हाँ, यहाँ आए सभी बुजुर्गों की नजर को तलाश है एक जीवन साथी की। आपने सही सुना, यहाँ आए सभी बुजुर्ग जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने जीवन साथी की तलाश में आए हैं। ये स्वयंवर इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यहाँ आए कैंडिडेट पर चुने हुए साथी के साथ शादी करने का दबाव नहीं है। यहाँ आए लोग अपने अपने लिव इन पार्टनर को चुनेंगे, जिसके बाद वो कुछ समय तक एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। अगर दोनों को लगेगा कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है तो शादी करके अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ निभाएंगे। आने के उसके आए बहार, जाने के उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महक। बिना मूल्य अमूल्य सेवा नाम का एनजीओ हर साल ऐसे स्वयंवर का आयोजन करता है। इस समारोह में करीब 300 पुरुषों और 70 महिलाओं को बुलाया गया है। इस अनोखे स्वयंवर के पहले ही दिन कई लिव इन जोड़े भी बन गए। भारत में जहां लिव इन रिलेशन को कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए आयोजित इस तरह के स्वयंवर लिव इन की परिभाषा बदल सकते हैं। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।
इन दिनों में जब ठाकर अपने 1956 की फिल्मों की बातें कर रहे हैं। उसी साल में एक अच्छी फिल्म आई थी राजहट। इस बार जय भाई जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके मुझसे सुने। इट वॉज अ गुड मूवी, सो लेट्स हैव ए लुक एट राजहट, जय भाई ठाकर। नमस्ते मित्रों। सोहराब मोदी ये अपनी उर्दू और हिंदी फिल्मों के बड़े माहिर डायलॉग बाज थे। उनकी डायलॉग की डिलीवरी बहुत ही बढ़िया, शानदार थी और उनके डायलॉग सुनने के लिए लोग फिल्म देखने जाते थे। एक्टिंग अच्छी थी, मगर पृथ्वीराज कपूर बेटर, ही वॉज अ बेटर एक्टर पृथ्वीराज कपूर। सोहराब मोदी की जो स्टाइल थी, जो छटा जिसे कहते हैं डायलॉग की, वो बहुत बढ़िया थी। तो और वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। तो उनकी एक फिल्म 1956 में आई थी, राजहट। पोशाक चित्र जिसे कहते हैं ना, कॉस्ट्यूम ड्रामा। उसमें सोहराब मोदी एक राजा है और वो अपने बेटा प्रदीप कुमार जो है उसके लिए प्रपोजल भेजते हैं बगल वाले राज के राजा को, जिनकी बेटी है मधुबाला, बहुत सुंदर है। मगर उनकी कोई पुरानी अदावत की वजह से ये रिफ्यूज़ हो जाता है, बोलते हैं नहीं, और ये उनको बड़ी बेइज्जती होती है, उनकी तौहीन होती है और लड़ाई, अहम जो होता है ना, गुमान, तो वो शुरू हो जाता है उनका घर्षण। मगर इस घर्षण में से ही प्रदीप कुमार और मधुबाला के बीच में प्यार हो जाता है और प्यार की तो जीत होनी है, ज़्यादातर होती है। लैला मजनू, शीरी फरहाद या सोहनी महिवाल वगैरह फिल्मों में नहीं होती होगी, कहानियों में, मगर यहाँ होती है। वो कैसे होती है वो आपको देखना है। मगर फिल्म राजहट नाम क्यों है आप पूछेंगे, तो ये तो सीधी सादी कहानी हुई। राजहट इसलिए है कि जो सोहराब मोदी है, जब उसके बेटे के लिए जो कहलवाते हैं और वो मनाई आती है वहाँ से, तो बड़े गुस्से में आ जाके प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी अपनी बेटी और अदर अपने बेटी की शादी यहाँ नहीं करूँगा, ये वो। और वो प्रतिज्ञा जो है उसका पालन नहीं होता, क्योंकि दोनों की शादी तो हो जाती है। तो ये राजहट जो होती है उसके बारे में ये पूरी कहानी है। वैसे कहानी जैसे मैंने कहा कॉमन, प्रदीप कुमार, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रदीप कुमार। मधुबाला बड़ी सुंदर लगती है। सोहराब मोदी तो खैर है ही टावरिंग पर्सनालिटी। मगर इस फिल्म के 3 गाने बहुत सुंदर हैं। काफ़ी गाने थे, ऐसे 8-10 गाने थे, मगर एक तो मेरे सपनों में आना रे, लता मंगेशकर की बड़ी सुंदर रचना है। और दूसरा मोहम्मद रफ़ी का है, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या बात है, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। बड़ी सुंदर, बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है ये। और तीसरा गीत है, ये वादा करो चांद के सामने, तो ये भी बहुत सुंदर गीत था। तो ये 3 गाने, सोहराब मोदी, मधुबाला, प्रदीप कुमार, राजहट।